فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو، کر لو علم نیکیاں جنت کا یوں سامان لو۔ گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ ہو ہے رب میری دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم حاضر ہیں پروگرام فرصت کے لمحات کے ساتھ۔ اس میں کسی ایک موضوع پر عاشقان رسول سے ان کے خیالات سنتے اور تاثرات لیتے ہیں۔ آج جس موضوع کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے فرصت کے لمحات سفر میں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کی مصروفیات کے بیچ فرصت کے لمحات کا مل جانا بہت بڑی غنیمت ہے، بالخصوص سفر کے دوران۔ تو کیا کبھی سوچا ہے آپ نے کہ وہ فرصت کے لمحات ہم کیسے گزارتے ہیں اور ہمیں کیسے گزارنے چاہیے؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے سفر کے دوران اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں کس طرح بسر کیا جائے۔ ان لمحات کو زندگی کا یادگار حصہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہتری کا سامان ہو۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ ہو ہے رب میری دعا۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح بھی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ عام جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کی کیا کیفیت بنتی ہے کہ یار یہ سفر ہم کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری زندگی کا یہ آخری سفر ہے، پتہ ہی نہیں ہے نا۔ تو ہمیں یہ وقت کیسا گزارنا چاہیے؟ جب ہم وہاں سے چلے تھے تو ہم 3-4 دوست تھے، تو ہم نے آپس میں طے کیا تھا کراچی جانے تک ہم نے 10-10 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے سفر گزارنے کا، عبادت بھی ہو جاتی ہے، اللہ بھی راضی، اللہ اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ مشورہ آپ نے ان کو دیا تھا یا انہوں نے آپ کو دیا کہ یار اس دفعہ ہم جائیں گے تو کراچی تک ہم نے سفر میں درود پاک پڑھنا ہے؟ جی میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ نے بھی پورا کرنا ہے، میں نے بھی کم از کم 10 ہزار مرتبہ پورا کرنا ہے، زیادہ ہو جائے تو بہتر ہو جائے۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، سفر تو کٹ ہی جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سفر جو ہے عذاب کا ٹکڑا ہے، تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے دیکھا آپ نے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں نے کراچی پہنچنے تک 10 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو کیوں نہ اپنا سفر جو ہے اس کو قیمتی بنائیں، ذکر اللہ میں مصروف رہیں۔ ہو سکتا ہے یہی سفر ہمارا ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک کاموں میں مصروف رہتے ہوئے سفر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ چونکہ مسلمانوں کی اکثریت آج دین سے دور ہے، اس لیے عام گھر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں فرصت وقت میں، جو فرصت کے لمحات ہوتے ہیں۔ تو چونکہ سفر جو ہے اس میں زیادہ وقت جو ہے وہ مل جاتا ہے اور کوئی مصروفیت بھی نہیں ہوتی ہے، تو لوگ عام طور پہ سوشل میڈیا کا غلطی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم لوگ جب کراچی آ رہے تھے تو میں تھوڑا آرام کے لیے لیٹا ہوا تھا، تو ساتھ ہی والے کیبن میں جو ہے وہ کچھ بچے جو ہے انہوں نے اس طرح کے کارٹونز وغیرہ لگائے ہوئے تھے، بعضوں نے گانے لگائے ہوئے تھے، تو تھکاوٹ کے باوجود بھی میں آرام نہیں کر سکا۔ جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں اور سفر میں چونکہ زیادہ فرصت ہوتی ہے اس لیے اس کا زیادہ غلط استعمال ہوتا ہے، جو کہ دیگر مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ اس وقت ہماری بس
अपने सफ़र पे रवा दवा है। और आशिकान रसूल का ये मदनी काफ़िला जो रावलपिंडी तलागंज से होता हुआ यहाँ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 3 रोज़ा मदनी मुज़ाकरे में शिरकत के बाद अब वापसी का सफ़र इख्तियार किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस सिलसिले का मौजू जो है फ़ुर्सत के लम्हात सफ़र में। सफ़र खुशियों भरा भी होता है, सफ़र गमगीन भी। फ़ुर्सत के लम्हात के इन औकात को हम कैसे गुजारते हैं, इस सिलसिले में हम इसका तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सफ़र के आगाज़ में यह सफ़र की दुआ भी पढ़ाएंगे। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। सफ़र बस का या ट्रेन का सफ़र होता है। जो फुर्सत के लम्हात सफ़र में मिलते हैं वो हम कैसे गुजारते हैं, आइए इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दौरान सफ़र जो फुर्सत के लम्हात होते हैं, फारिग होते हैं, कोई काम नहीं होता, बस यही इंतज़ार होती है कि कब हम अपनी मंजिल मक़सूद में पहुँचें। हम ये सफ़र कैसे गुजारते हैं और गुजारना कैसे चाहिए? ऐसा है कि आज से 20-25 साल पहले जब सफ़र करते थे तो उस वक्त होता था बच्चों के पास, मुसाफिरों के पास नावल, अखबार। अब सबके हाथ में मोबाइल होते हैं, तो मोबाइल में बस अपनी गेमों में लगे हुए हैं, कोई ड्रामों में लगे हुए हैं। हालांकि फुर्सत के लम्हात में उनको चाहिए कि अल्लाह के दीन की कोई बातें फारिग हैं सीख लें, कुछ याद कर लें, दुआएं याद कर लें। उस तरफ कोई नहीं जाते हैं, बस अपने शुगल में लगे रहते हैं। ये नहीं सफ़र है, सफ़र का कोई पता नहीं किस वक्त ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाए, लेकिन हमें इस चीज़ की याद नहीं आती। बड़ा जुल्म करते हैं हम अपने ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद जब लाहौर जाना होता है ना, वहाँ भी कई मरतबा ऐसा होता है कि दोस्त आपस में मिलकर जाते हैं ना कहीं, हम वहाँ पर यही हमारा मामूल होता है। और कई मरतबा हमारा ये भी मामूल है कि हमने आपस में कितने कितने पारे पढ़कर जाने हैं। एक मरतबा हम लाहौर गए थे तो आपस में हमने तय किया था कि हम कितना पढ़ेंगे। वो सब ने कहा था कि कम अज़ कम 5 पारे हम पढ़ेंगे, तो 5 पारे भी पढ़ लिए थे, हम लाहौर भी पहुंच गए थे। क्या मामूल होता है दौरान सफ़र आपका? क्योंकि बिल्कुल फरागत होती है, कोई काम नहीं होता, आराम से सीट पे बैठे होते हैं। अक्सर लोग सोचों में गुम, कभी किधर की सोच, कभी किधर की। तो आपका सफ़र कैसे गुजरता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो पीर और मुर्शिद ने ये तरबियत फरमाई है कि जब इस सफ़र में बैठें तो दरूद पाक पढ़ते रहें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का जिक्र करते रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह यही जदवल होता है। माशाल्लाह, ये मामूल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची पहली दफ़ा आया हूँ। कराची पहली दफ़ा जी अल्हम्दुलिल्लाह। पीर साहब से मुलाकात ये सबसे बड़ी वजह है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी अरसे से दावत इस्लामी से वाबस्ता है। दर मुर्शिद पे हाज़री ये भी बड़ी सआदत है। आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है दौरान सफ़र, ये सफ़र को बेहतर बनाता है या ख़राब करता है? ये तो सोशल मीडिया देखने वाले पे डिपेंड करता है। अगर तो वो अच्छी चीज़ देखे, मिसाल के तौर पे वो मदनी चंद लगा के बैठ जाता है, उस पर अल्लाह का जिक्र सुनता है, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सनाखानी सुनता है, तो उसके लिए ये सफ़र जो है ना वो बेहतरीन सफ़र हो जाएगा, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी उसके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर वो गाना वगैरह सुनता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सोशल मीडिया अगर सही इस्तेमाल करो तो सही है, इसमें सारे ऑप्शंस हैं, गलत भी हैं, अच्छे भी हैं। अगर आप अच्छे लेंगे तो फिर कारोबार में लगे हुए हैं सोशल मीडिया से तो बहुत बेहतर है। उसके बाद आप दीन की इस्लामी बातें, सूरतें हैं, दुआएं हैं, वो उनको याद कर सकते हैं। लेकिन हम गेमों में लगे हुए हैं, ड्रामों में लगे हुए हैं, ताश के लूडो या और भी कोई कई गेम हैं जो उनमें लगे हुए हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। गुनाहों भरा सफ़र है ना, मतलब इससे तो इतना भी बेहतर है
बिल्कुल नई नस्ल को बचाना चाहिए इससे। यही हमारी मतलब जो दावत इस्लामी का मिशन है कि मुझे अपनी और पूरे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, ठीक है, तो इस पे अमल करना चाहिए। सफ़र में आपने देखा होगा कि अक्सर लोग सोशल मीडिया पे मोबाइल के ऊपर अपना वक्त सर्व करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बेहतर है कि इसको ज़िक्र अस्कार में दुरूद पाक पढ़ते हुए सफ़र गुजारा जाए, ये सोशल मीडिया वगैरह से फजूलियात से बचा जाए, क्योंकि सफ़र का तो मालूमात नहीं होती बंदा अपने अख्ताम तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। अगर ज़िक्र में मशगूल होगा, दुरूद पाक पढ़ता रहेगा तो इंशाल्लाह सफ़र भी आसानी से गुजरेगा, थकावट भी नहीं होगी और उसको कोई मसला परेशानी भी नहीं बनेगा। सफ़र जो है उसमें ज़्यादा वक्त जो है वो मिल जाता है और कोई मसरूफियत भी नहीं होती है, तो लोग आम तौर पे सोशल मीडिया का गलती इस्तेमाल करते हैं। तो हमें चाहिए कि सफ़र के दौरान जो है कोशिश करें कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव करें। इसकी अगर असी कोशिश करिए तो असी मुस्बत अंदाज में भी गुजार सकने हाँ, यानी कि जिंदगी भी जी है ये भी एक सफ़र है आखिरत की तरफ। अगर इस सफ़र की असी उस नज़रिए नाल गुजार सां तो साड़ा वो फ़ायदा भी दे सकना। मसलन हुण जिवें मोबाइल ही असां नैगेटिव जियां असां दस्सिया कि इस्तेमाल है, इसकी पॉजिटिव इस्तेमाल किया जा सकना, क्योंकि अजकल मोबाइल में तुसें की कुरान पाक भी मुयसर है। अगर तुसी पढ़ नहीं सकने, पढ़ने च प्रॉब्लम हो रही है, तुसी हैंड फ्री ला के या एयरबड ला के सुन सकने हो, ठीक है, तफसीर सुन सकने हो। इस तो इलावा तुसी बयानात सुन सकने हो और तुसी मतलब अगर तुसी ये भी सुनने का मूड नहीं है या इस मोबाइल ने यूज़ नहीं है, तुसी तस्बीह पकड़ो, काउंटर पकड़ो, तुसी दुरूद शरीफ पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, जिक्रुल्लाह करो, कोई भी मतलब उस इस तरह कर सकते हो। मदनी चैनल के नाज़रीन, तो जो एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह पाक उसका दरख्त जन्नत में लगा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो भी एक दरख्त लग जाता है जन्नत में। अभी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम अपना वक्त जो है फजूल कामों में गुजारने की बजाय जिक्रुल्लाह में गुजारें। वक्त तो गुजर ही जाएगा, चाहे हम फजूल गोई में गुजारें, गेम खेल के गुजारें, फजूल गप्पों में गुजारें, और क्यों न अपने वक्त को कीमती बनाते हुए अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए अपने वक्त को जिक्रुल्लाह में गुजारें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ल जो करना है, आखिर मौत है। मौत तो आनी आनी है ना, इसलिए जहाँ हमने जाना है यानी दुनिया से जाना है वहाँ के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, ताकि अल्लाह करे कि हमारी आखिरत हमारी संवर जाए। दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि आखिरत की तैयारी करने के लिए। अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और काश की हमारे ये चीज़ें हमारे नौजवान भाइयों को भी उनको भी पता चल जाए, ताकि उनका भी ज़हन बन जाए कि हम भी जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं उस मकसद में हम कामयाबी हासिल हो जाए। आपका अपना मामूल जो है वो क्या होता है सफ़र में? ऐसी गाड़ी का इंतखाब करता हूँ जिसमें नमाज का वक्त दें, और कोशिश करता हूँ दुरूद पाक पढ़ते हुए सफ़र, उसमें थकावट भी नहीं होती, सुकून से सफ़र गुजर जाता है। हो गुजर लम्हात का याद में तेरी खुदा, आफियत का साथ हो है ये रब मेरी दुआ। सफ़र में हम अपने वक्त को ज़िक्र और दुरूद में गुजारें। हम अपने पास कोई तस्बीह या काउंटर वगैरह ले लें। इसी तरह मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ़ इस्लामिक एप्लीकेशन होती हैं, कुरान पाक की तिलावत भी की जा सकती है और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनी जा सकती है। तो यानी हम इस तरह अगर अपने वक्त को गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे इस जो है सफ़र में हमें सुकून और इत्मीनान भी मिलेगा। दौरान सफ़र जब कभी आप बैग वगैरह या कोई कीमती सामान आप लेके निकलते हैं, तो अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने ऐसे में क्या नुस्खा इरशाद फरमाया है, क्या कर लिया जाए तो आपका सामान हिफाजत में रहेगा? अमीर अहले सुन्नत दान बरकातुहुल आलिया इरशाद फरमाते हैं कि जब भी सामान रखें, कोई चीज़ रखें, तो उसके ऊपर 10 मरतबा या जलीलो पढ़कर दम कर दे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वो सामान गुम नहीं होगा, चोरी नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। माशाअल्लाह। इसका एक वाक़या ऐसे भी हुआ कि एक बस जो है वो सफ़र में रवाना थी, रात का वक्त था, तो एक कार जो है वो पास से गुजरी और ड्राइवर के आगे आगे उसने चलना शुरू किया और इंडिकेटर देने शुरू कर दिए कि किस तरीके से ये गाड़ी को रोके। ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। अब गाड़ी रुकी तो कार वाले उतर के नीचे आए और दरवाज़ा खोला गया। उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी की जो डिग्गी है ये खुली हुई थी, तो एक बैग इसमें से गिर गया नीचे, तो हमारी कार पीछे आ रही थी, हमने उठाया और उसको ला के आपको दे दिया, अभी देख लें कि आपकी गाड़ी में किसका है। तो कंडक्टर ने फ़ौरन आवाज़ दी, भाई ये बैग किसका है। तो जिस इस्लाम भाई का बैग था वो उठ के खड़े हो गए। उन्होंने बोला ये बैग तो मेरा है।
और बोला यह बैग आपका रास्ते में गिर गया था, अपने पास रख ले। उन्होंने देखा कि बैग थोड़ा सा फट गया है, लेकिन चीज़ें उसकी सारी महफूज रही। जब उनसे मालूम किया गया कि आपका ये बैग जो है आपको मिल गया, कितनी खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, मैंने इसके ऊपर 10 बार या जलीलू पढ़ के दम किया था। ये मेरे पीर मुर्शिद ने इरशाद फरमाया था कि जो कोई ऐसा करेगा उसका सामान जो है गुम होने से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला ने अब नाम की बरकत से, अपने नाम की बरकत से उस सामान को गुम होने से बचा लिया। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर ये देखा गया है कि सफ़र के दौरान बस जो है वो रुकती नहीं है और नमाज का वक्त हो जाता है। कभी आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ? इसमें कोशिश होती है कि सफ़र में कम खाना पीना किया जाए। अगर कम खाएं पिएंगे तो वज़ू टाइम तक रहेगा। तो अगर बस रुकती है थोड़ी देर के लिए, तो अगर वज़ू वगैरह होगा तो बंदा बर वक्त नमाज पढ़ लेता है। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮੂਮਨ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਗਫਲਤਾਂ ਇੱਕ ਗਫਲਤ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੋਣਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਜੂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾ ਰੁਕਣੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣੇ। ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ऐसे में जब नमाज का वक्त निकल रहा होता है और गाड़ी नहीं रुकती तो फिर क्या करते हैं? फिर सीट पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि वक्त के अंदर अंदर सीट पे बैठ पर पढ़ लेते हैं। जो है फिर गाड़ी रुकती है तो फिर उसका अदा कर लेते हैं, बाद में लौटा लेते हैं। हो गुजर लम्हात का याद में तेरी खुदा, आफियत का साथ हो है रब मेरी दुआ। मुझे आपकी गुफ्तगू से ये महसूस हुआ है कि माशाल्लाह जैसे आपका जहन और आपकी सोच है, आप किसी दीनी तहरीक के साथ वाबस्ता है, ऐसा मैं जो जज कर रहा हूँ, क्या ये दुरुस्त है? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के साथ मेरा ताल्लुक़ है। क़िबला अमीरुल सुन्नत मेरे पीर मुर्शिद हैं और इसी के बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों के अंदर अक्सर कुरान मजीद की तिलावत होती है। अब मैं ट्रेन में भी अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 सफ़र अभी पढ़े हैं, सफ़र में जी अभी पढ़े हैं जी हाँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी मदनी चैनल के नाज़रीन, ये अच्छे माहौल की बरकत है। वो क्या फरमाते हैं कि चंगे बंदे दी सोबत यारो, जिमें दुकान अतारा, सौदा भावें मुल न लईए, खुले औन हज़ारा। बुरे बंदे दी सोबत यारो, जिमें दुकान लोहारा, कपड़े भावें कुंज कुंज पईए, चिड़ियाँ पैण हज़ारा। वाकई हमें अच्छे माहौल से वाबस्ता रहना चाहिए, जिसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब होती है। अल्लाह पाक हम सबको अच्छे माहौल से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह ये बुज़ुर्ग इस्लाम भाई अपना सफ़र इख्तियार किए हुए हैं, इसी तरह हमें भी अपना सफ़र इख्तियार करते हुए दुनिया और आखिरत की तैयारी दुनिया में करके जाने की तौफीक अता फरमाए। जो सफ़र आपको हमेशा याद रहे, तो ऐसा सफ़र भी आपकी लाइफ? वो एक सफ़र ऐसा है कि सफ़र में जा रहे थे, शाम का टाइम था मगरिब का, तो एक हमारी उम्र के बुज़ुर्ग थे, नमाज मगरिब के टाइम पे उन्होंने 2 फ़र्ज़ पढ़े सीट पे बैठ के। जैसे मैं बैठा सिंगल सीट पे, तो मैं उधर दूसरी पे बैठा था, तो मैंने बात तो हो गई, मैंने कहा जी मगरिब के 3 फ़र्ज़ होते हैं। उन्होंने बोला कि जब ज़ोहर के असर के 4 2 हो सकते हैं तो मगरिब के 3 2 क्यों नहीं हो सकते? मैं तो 2 ही पढ़े हैं, मैंने 2 ही पढ़ने हैं। दीन सीखने के लिए मुफ्ती साहिबान और उलमा के पास जाने की बजाय हम खुद मुफ्ती बन जाते हैं। सफ़र में नमाज़ में कसर पढ़ी जाती है, ज़ोहर के 2 फ़र्ज़ हैं और असर के 2 फ़र्ज़ पढ़ लिए, तो वो इस्लाम भाई मगरिब के भी 2 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं। तो उनसे जब ये कहा गया कि हुज़ूर मगरिब के 3 ही पढ़े जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर असर और ज़ोहर के जो हैं वो 2 पढ़े जाते हैं तो मगरिब के 2 क्यों नहीं, हम 2 ही पढ़ेंगे। तो मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि आप मगरिब के 2 फ़र्ज़ पढ़ लें तो नमाज अदा हो जाएगी। इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बुज़ुर्ग साहब फरमा रहे हैं, इनका जिनके साथ कोई टकरा हुआ और उन्होंने कहा कि मैं मगरिब में भी कसर करूँगा, तो ये वाकई दीन से दूरी है। दीनी अहकामात, शरई मसाइल ये ना सीखने का एक नतीजा होता है। हम दीन इस्लाम के पाबंद हैं, ना कि ये है कि हम सीखें भी नहीं और अपनी मर्ज़ी से ही करते रहें, ऐसा नहीं। कसर नमाज का ताल्लुक़ ही 4 रकत वाली नमाज़ों के साथ और 4 रकत भी फ़राइज़ के साथ है सिर्फ़, ये बात भी याद रखनी है, सुन्नतों के साथ नहीं है। अब मिसाल के तौर पे ज़ोहर की सुन्नतें पहली 4 तो 4 पूरी हैं, असर की हैं तो 4 पहली 4 पूरी हैं, इशा की पहली 4 पूरी हैं। अच्छा वितर हैं तो 3 पूरे हैं, इसमें कसर थोड़ी। फजर की नमाज में 2 रकतें तो 2 रकतें पूरी हैं, वो फिर 1 पढ़ें,
اگر یہ بزرگ یوں کہیں کہ وہ 3 کی جگہ میں 2 پڑھوں گا تو پھر فجر میں بھی آپ 2 کی جگہ 1 پڑھیں. یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے. اچھا 3 کی جگہ پھر آپ نے 2 کیوں پڑھی؟ کسر تو آدھی ہوتی ہے نا, تو پھر آپ کوئی بیچ کی راہ نکالیں, 1.5 والی رکعت کیسے بنائیں گے آپ؟ تو اس لیے یہ بالکل غلط فہمی پر ہیں, اور جنہوں نے بھی ایسا کیا غلط کیا ہے. ہمیں صرف فرائض میں قصر نماز کے لیے حکم ارشاد فرمایا گیا, اور وہ بھی ظہر, عصر اور عشاء کے فرائض میں. سنتیں جب پڑھیں گے, وطر پڑھیں گے تو پورا پورا ہوگا. اچھا سنتوں کو بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سفر ہے تو سنتیں بالکل ہی معاف ہو جاتی. سنتیں مؤکدہ جو ہیں ان کی تاکید اس طرح اگرچہ نہیں رہتی سفر میں جب بالخصوص آدمی جا رہا ہو, اور لیکن اگر امن کی حالت میں ہے, عام کیفیات میں ہے, اور نہ کوئی قافلہ جا رہا ہے, نہ کچھ بس جا رہی ہے, نہ کوئی اور معاملہ ہے, تو پھر اس کو ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. ایسا نہیں کہ سنت مؤکدہ وہ ترک کر دے, ایسا نہیں کرنا ان کو. تو خلاصہ یہی ہوا کلام کا کہ جو شریعت مطہرہ نے جہاں جہاں رخصت دی ہے وہ فرض کے اندر صرف دی ہے, وہ ظہر ہے, عصر ہے اور عشاء ہے. اس کے علاوہ جو کچھ پڑھیں گے وہ پوری نماز کو ادا کریں گے, ان میں قصر نہیں کریں گے. جس شخص نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوئی, اس کی نماز نہیں ہوئی, وہ نماز اس پر قضا باقی ہے, اس نماز کو وہ ادا کرے گا. دوسرا یہ کہ یہ قصر کرنا ہماری مرضی پر نہیں ہے. اب مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ میں بڑی آسانی والے سفر میں ہوں, سہولت والے میں ہوں, میں وہاں پہنچ چکا ہوں, مجھے اگرچہ 15 دن نہیں رہنا, میں مسافر شرعی ہوں, لیکن میں تو آرام سے ہوں, ٹھاٹ باٹ سے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں, اے سی چل رہے ہیں, آرام سے بیٹھا ہوں, تو میں قصر نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے. جو شریعت مطہرہ نے جیسے حکم دے دیا ہے اس کو نماز ویسے ہی پڑھنی. مثلا آپ مکہ مدینے جاتے ہیں, اب آپ 20 دن کا عمرہ پیکج لے کر چلے گئے یا 15 دن کا عمرہ پیکج لے کے چلے گئے. اب آپ نے 8-10 دن مکہ مکرمہ رہنا ہے یا 8-10 دن مدینہ منورہ رہنا ہے, تو اس کا مطلب آپ نہ مکے میں مقیم ہوئے نہ مدینہ منورہ میں مقیم ہوئے, آپ دونوں جگہ مسافر ہیں. اب آپ کہیں کہ نہیں بھی ہم تو ہوٹلوں میں رہتے ہیں, اچھے آرام سے رہ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, تو اب ہم پوری نماز پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہوگا. جبکہ آپ نے یہ سفر جو اختیار کیا ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت اختیار کر کے آپ آئے ہیں, تو آپ کو جن میں قصر ہے قصر کرنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. صحابی رسول عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمیں قصر نماز کا حکم دیا تھا جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ, اس میں تو یہ ارشاد فرمایا اگر تمہیں دشمنوں کا خوف ہو, یعنی وہاں ایک خوف کی قید لگا کر یہ حکم دیا گیا ہے. تو اب جب ہم امن میں ہوں, کوئی دشمن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اب بھی قصر کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے تمہیں صدقہ ہے, یعنی ایک تخفیف ہے نماز میں, تو اس تخفیف کو قبول کرو, اس تخفیف کو قبول کرو, تو لہذا تم قصر ہی کرو. تو چاہے امن کی حالت میں ہو یا خوف کی حالت میں ہو, عام نارمل حالات میں ہو مسافر شرعی, اسے قصر نمازوں میں قصر کرنی ہے. یہ ہماری مرضی کے اوپر نہیں ہے, اسے قصر ہی پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی 2 کی جگہ 4 پڑھتا ہے تو پھر اس کے آگے شرعی مسائل کہ وہ اگر 2 کے بعد قاعدہ کیا تھا, بیٹھا تھا تحیات میں یا نہیں بیٹھا. بعض صورتوں میں نماز ہی نہیں ہوتی اور بعض صورتوں میں اس کی نماز دوبارہ پڑھنا اس پر واجب ہو جاتی ہے. تو اس لیے محترم سامعین کرام, اس مسئلے کو باقاعدہ سمجھنا چاہیے. اور جو حضرات سفر کر کے جاتے ہیں کہیں, تو جہاں دیگر چیزوں کی آپ معلومات لے کر جاتے ہیں تو اپنے نمازوں کے حوالے سے بھی شرعی احکام ہمیں معلوم کر کے ضرور جانا چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور پھر وہ ہماری نمازیں بھی نہ ہو رہی ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سفر کو گزارنا کیسے چاہیے, کس انداز میں گزارنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ دعائیں نکالیں, ان کو پڑھیں. ایک تو اس سے برکت آئے گی, جسم میں برکت آئے گی, گھر میں برکت آئے گی. دوسرا اگر وہ یاد نہیں ہے ان کو یاد کریں. سفر میں ٹائم ملا ہوا ہے, گھنٹہ ہے, 20 گھنٹے ہیں, 2 گھنٹے, جتنا بھی سفر ہے وہ آپ کو ٹائم فری ملا ہوا ہے,
اس میں آپ کو کوئی ٹینشن کوئی کاروبار نہیں ہے, اس میں آپ بہت اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. سفر کو ہمیشہ ایسا گزاریں کہ یہ سفر آپ کا یادگار بن جائے اور دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے. اللہ پاک ہم سب کو سفر سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, سفر تو ہم کرتے رہتے ہیں, آرام دہ اور سہولیت سے بھرپور, کبھی کاروبار کے ارادے سے یا پھر سیر و تفریح کے لیے, اور کبھی کبھار اپنوں سے ملنے کے لیے بھی تو سفر اختیار کیا جاتا ہے. کیا کبھی غور کیا ہم نے ہمارے سفر کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ دوران سفر زندگی کے قیمتی لمحات کو کیا ہم دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارتے ہیں؟ آئیے غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے سفر کو آسان فرما دے, اور ہماری مصروفیات, فرصت کے لمحات, ہمارا ہر سانس اور ہر پل اللہ پاک اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے کاموں میں گزرے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو, کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو.